کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی بڑی اور چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا دجال، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب سچ ہیں؟ کیا ہم ان دنوں میں جی رہے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبردار فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں دیکھ کر مومن کا دل کانپ جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے ان ابتدائی نشانیوں کے بارے میں جو ہمارے ارد گرد ظاہر ہو چکی ہیں، جنہیں قرآن و حدیث میں چھوٹی نشانیاں کہا گیا ہے اور جو زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، شاید آپ کی آنکھ کھل جائے، شاید آپ کا دل بدل جائے اور شاید آپ توبہ کا دروازہ کھول لیں۔ صفوان اسلامک ورلڈ پر خوش آمدید۔ اسلام میں قیامت کے دن کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن اور احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک قائم ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا کو مختلف نشانیوں کے ذریعے خبردار کرے گا۔ قیامت کی نشانیاں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، پہلی چھوٹی نشانیاں، دوسری بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی رہیں گی اور زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی نشانیاں قیامت سے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جیسے دجال، سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج وغیرہ۔ آج ہم بات کریں گے چھوٹی نشانیوں پر جنہیں ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ علم کا اٹھ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو دلوں سے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کے دنیا سے اٹھا لینے سے علم ختم کر دے گا۔ آج علماء حق کم ہوتے جا رہے ہیں، دین سکھانے والے مخلص لوگ کم ہو رہے ہیں، دینی مدارس خالی، مساجد ویران اور جھوٹے علماء کا دور دورہ ہے۔ جہالت کا پھیل جانا۔ لوگ دنیاوی تعلیم کو سب کچھ سمجھتے ہیں مگر دین کا علم ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت سے دوری عام ہو چکی ہے۔ قتل و غارت گری کا عام ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا جب قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیوں قتل کیا اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا گیا۔ آج دنیا میں قتل، جنگیں اور دہشت گردی ایک معمول بن چکی ہے۔ گناہوں کا فخر سے کیا جانا، شراب، زنا، دھوکہ، جھوٹ، یہ سب عام ہو چکے ہیں۔ گناہ کرنے والے شرمندہ نہیں بلکہ فخر سے گناہ کرتے ہیں۔ موسیقی اور گانے بجانے کا عام ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں لوگ آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ میوزک، گانے، رقص ہر جگہ عام ہو چکے ہیں اور لوگوں کے دل ان گانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عورتوں کی تعداد بڑھ جانا، مرد کم ہو جانا۔ ایک حدیث میں ہے، 50 عورتوں کا ایک مرد نگہبان ہوگا۔ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مردوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ۔ حدیث میں فرمایا، تم دیکھو گے کہ چرواہے لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آج دنیا کے بڑے شہروں میں آسمان چھوتی عمارتیں اس حدیث کی عملی تصویر ہیں۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ دن، مہینے اور سال لمحوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ یہ وقت کی برکت ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ مال کی کثرت، دل کی بھوک۔ لوگوں کے پاس دولت تو ہوگی لیکن دل کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ قناعت ختم ہو جائے گی، لوگ دولت کے غلام بن جائیں گے۔
मौत का अचानक आ जाना। हदीस के मुताबिक मौत अचानक आ जाएगी। लोग सोचेंगे कि वक्त है, लेकिन दुनिया से चले जाएंगे। अचानक अमवात बढ़ चुकी हैं। दिल के दौरे, हादसात, बीमारियों में अचानक अमवात हो रही हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये निशानियाँ कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत हैं, और ये हकीकत हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना ज़ाहिर हो रही हैं। ये मत सोचिए कि क़यामत दूर है। क़यामत की घड़ी हरकत में आ चुकी है। अब भी वक्त है संभलने का, अब भी मौका है तौबा करने का। नमाज कायम करें, कुरान पढ़ें, वालिदैन का एहतराम करें, गुनाहों से बचें, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें। हम नहीं जानते कि हमें अगला लम्हा मिलेगा या नहीं। आज संभल गए तो कामयाब, वरना अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये थी क़यामत की छोटी निशानियाँ। क्या आप जानते हैं एक वक्त ऐसा आने वाला है जब ज़मीन पर ऐसा फसाद बर्पा होगा जो तारीख़ ने पहले कभी ना देखा होगा। दज्जाल का फितना, याजूज माजूज की तबाही और सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये वो निशानियां हैं जिनके बाद इंसानों के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुशामदीद आपके अपने चैनल सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे क़यामत की उन बड़ी निशानियों के बारे में जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का फितना और दीगर निशानियाँ। ये सब निशानियाँ कब ज़ाहिर होंगी और उनका असर दुनिया पर कैसा होगा? दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप सुनेंगे वो हक़ाइक़ जो हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में सोचें। एक ऐसा वक्त जब दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी, हर तरफ अंधेरे छाए होंगे, मासूमों का खून बहाया जा रहा होगा, इस्लाम कमज़ोर हो चुका होगा। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आम इंसान होंगे। शुरू में खुद भी अपने बारे में नहीं जानते होंगे कि वो कौन है, लेकिन अल्लाह ताला उनके दिल को एक रात में बदल देगा और उन्हें अजीम रहनुमा बना देगा। लोग मक्का मुकर्रमा में उनके हाथ पर ज़बरदस्ती बैत करेंगे। वो रोना शुरू कर देंगे कि ये ज़िम्मेदारी मैं कैसे संभालूं, लेकिन अल्लाह उन्हें ताकत देगा। उनके लश्कर में सिर्फ नेक और पाक दिल लोग शामिल होंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर जुल्म के ऐवानों को हिला कर रख देगा। वो हर जगह अदल व इंसाफ कायम करेंगे। अल्लाह के दुश्मन उनसे कांपेंगे और इस्लाम को नई ज़िंदगी मिलेगी। फिर एक दिन दज्जाल का खुरूज होगा, एक ऐसा फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे बड़ा कोई और फितना ज़मीन पर नहीं आया। दज्जाल एक अजीब इंसान होगा। उसकी एक आंख गायब होगी। चमकदार जन्नत और दहकता हुआ जहन्नुम साथ लेकर निकलेगा। जो इसकी बात मानेगा वो इसको जन्नत देगा, लेकिन दरअसल वो आग होगी। दज्जाल जादू और शैतानी ताकतों से लोगों को धोखा देगा। एक खंडर बस्ती में कहेगा जिंदा हो जा, और वो बस्ती आबाद हो जाएगी। वो ज़मीन से ख़जाने निकलवाएगा और लोग समझेंगे कि वाकई ये रब है। दोस्तों, उसके फितने से बचने के लिए कुरान की पनाह लेना होगी। ख़ास तौर पर सूरह कहफ की इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात को याद करना होगा। अपने ईमान को मजबूत बनाना होगा। जब दज्जाल का फितना इंतहा पर होगा, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। उनका नज़ूल मशरिक़ी दमिश्क में एक सफ़ेद मीनार पर होगा। उनके बाल गोया पानी टपका रहे होंगे। वो 2 फरिश्तों के सहारे ज़मीन पर उतरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे। वो जान लेंगे कि उनका मिशन सिर्फ एक है,
दज्जाल को कत्ल करना और आखिरकार बाबे लुद के मुकाम पर दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर क़याम करेंगे, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे, लोगों को इस्लाम की दावत देंगे, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। दोस्तों, उनका दौर वो दौर होगा जब बरकतें नाजिल होंगी, भेड़ का दूध भी काफ़ी होगा, ज़मीन से ख़जाने निकलेंगे, लेकिन फिर भी लोग सादा ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों, एक और मुसीबत बाकी होगी, याजूज माजूज। जब उनका दरवाज़ा खुलेगा तो इनकी तादाद इतनी होगी कि इंसानियत खौफज़दा हो जाएगी। वो आसमान तक तीर फेंकेंगे और जब तीर वापस आएंगे तो उन पर खून लगा होगा। वो समझेंगे कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला खुद उन्हें ख़त्म करे और फिर अल्लाह एक कीड़ा उनकी गर्दनों में डाल देगा। वो सब के सब मर जाएंगे, ज़मीन बदबू से भर जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा, ज़मीन को साफ करेगा। ये निशानी दोस्तों सबसे ज़्यादा डरा देने वाली है। सूरज जो रोज़ मशरिक़ से निकलता है, एक दिन मगरिब से तुलू करेगा और उस दिन तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। हदीस में है कि जो ईमान उस दिन लाएगा उसका ईमान कबूल नहीं होगा। सोचे कैसा मंजर होगा जब लोग सूरज को मगरिब से निकलता देखेंगे और चीखेंगे, लेकिन उस वक्त तौबा का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। फिर ज़मीन से एक जानवर निकलेगा, अजीबुल खल्क़त मखलूक, जो बात भी करेगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी उसके पास होगी। ये मखलूक मोमिनों और काफिरों के चेहरों पर निशान लगा देगा और लोग एक दूसरे को देखकर पहचानेंगे कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। जानवर वाले वाक़ये के कुछ ही रोज़ बाद जनूब की तरफ से एक ठंडी और निहायत फरहत बख्श हवा चलेगी, जिससे तमाम मुसलमानों के बगल में कुछ निकल आएगा, जिससे वो सब मर जाएंगे। हत्ता कि अगर कोई मुसलमान किसी गार में छुपा हुआ होगा, उसको भी ये हवा पहुंचेगी और वो वहीं मर जाएगा। अब रोए ज़मीन पर कोई मुसलमान नहीं होगा, सब काफिर होंगे और बुरे लोग रह जाएंगे। जब सारे मुसलमान मर जाएंगे और रोए ज़मीन पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे, उस वक्त सारी दुनिया में हबशियों का गलबा हो जाएगा और उन्हीं की हुकूमत होगी। कुरान करीम दिलों और कागज़ों से उठा लिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा, दिलों से खौफ़े खुदा और शर्म व हया बिल्कुल उठ जाएगी। लोग बरसरे आम बेहयाई करेंगे। बैतुल्लाह शरीफ को शहीद कर दिया जाएगा। हिब्शा का रहने वाला छोटी पिंडलियों वाला एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। उन तमाम अलामात के वाक़े हो जाने के बाद ऐश व आराम का ज़माना आएगा। मुहर्रम की 10 तारीख और जुमा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे कि अचानक क़यामत कायम होगी। 2 आदमियों ने कपड़ा फैला रखा होगा, इसको समेट ना सकेंगे और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध लेकर जाएगा और उसे पी नहीं सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपने पानी वाले हौज़ की मरम्मत कर रहा होगा और उससे पानी नहीं पी सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स ने निवाला मुंह की तरफ उठाया होगा, उसे मुंह में डाल ही नहीं सकेगा, क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से बर्पा होगी, जिसकी आवाज़ पहले हल्की और फिर इस कदर हैबतनाक होगी कि उससे सब जानदार मर जाएंगे। ज़मीन व आसमान फट जाएंगे, हर चीज़ टूट फूट कर फना हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान से एक अजीम धुआं उतरेगा जो पूरी दुनिया को ढांप लेगा। ये धुआं लोगों पर अज़ाब बनकर छाएगा।
काफिरों के गले तक पहुंच जाएगा और वो तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरत दुखान में इस धुएं का जिक्र फरमाया है। ज़मीन 3 बार हिलेगी, एक बार मशरिक़ में, एक बार मगरिब में और एक बार अरब के जजीरे में। ऐसे ज़लज़ले के पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, समंदर अपनी जगह छोड़ देंगे, शहर तबाह हो जाएंगे, लोग चीख चीख कर भागेंगे। यमन से एक ज़बरदस्त आग निकलेगी जो इंसानों को हाँकती हुई महशर के मैदान की तरफ ले जाएगी। लोग भागेंगे, चीखेंगे, लेकिन आग उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। ये आग इंसानों को घेर कर क़यामत के मैदान में ला खड़ा करेगी, जहाँ हिसाब किताब होगा। और आखिरकार दोस्तों, कुरान मिट जाएगा। लोग सुबह जागेंगे तो सफ़े खाली होंगी, दिल खाली होंगे। लोग अल्लाह के कलाम से महरूम हो जाएंगे। ये निशानी इस्लाम के दुनिया से ख़त्म होने की अलामत होगी। 40 साल बाद दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे सब जिंदा होकर मैदान महशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये निशानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इबरत हासिल करने के लिए हैं। याद रखें, कल क़यामत आने से पहले हम में से किसी की छोटी क़यामत यानी मौत आ सकती है। आज ही अल्लाह की तरफ पलटें, तौबा करें, 5 वक्त की नमाज कायम करें, कुरान से ताल्लुक़ बनाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दुनिया की रंगीनियाँ फ़ानी हैं, लेकिन आखिरत हमेशा की है। सफ़ान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि ईमान को ताज़ा रखने वाली हक़ाइक़ आप तक पहुँचती रहें। कमेंट में या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।